اور جلالی اور مسیح نام میں آپ سب کو سلام. خدا یسوع کا فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روحوں کے ساتھ ہمیشہ تک بنا رہے. بخوبی حمد و ثنا ہم نے کی. خدا نے ہماری حمد و ثنا کی قربانی کو بخوبی کی معنی قبول کیا. ہم اپنے خدا پیارے یسوع کا شکر کرتے ہیں. اب وقت ہے کلام خدا کا. اور میں پرستش میں دیکھ رہا تھا کہ پرستش کے درمیان کچھ لوگ وہاں دیکھ رہے تھے, کچھ لوگ وہاں دیکھ رہے تھے. میرا بھی یہ وہ حصہ ہے کلام مقدس کا کہ جہاں ٹھیک سننا بہت ہی زیادہ اہم, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو, کیونکہ سننے کا تعلق ایمان سے ہے. اور اگر یہاں سے میں غلط آپ کو تعلیم دیتا ہوں تو آپ کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور میرے لیے بھی. تو آپ کو چاہیے کہ جو یہاں سے میں بولنے جا رہا ہوں آپ کو اس کا علم ہونا لازمی ہے. تو اسی لیے پالوس بھائی بھی کہتا ہے کہ روح کو پرکھو, ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. تو یہاں سے آپ سے جو سنانے لگا ہوں کلام مقدس میں سے اسے آپ نے پرکھنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عیسیٰ پینتیکوست کے دن کون سی زبانیں اتری تھی یا بولی گئی. سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کلیسیا کے اندر, سنیگوگ کہتے ہیں عبادت خانوں کے اندر ایک ایسی زبان بولی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زبان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زبان میں ہم بیت کی باتیں کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان بدروہوں کو سمجھ نہیں آتی اس لیے ہم یہ زبان بولتے ہیں. مگر کلام مقدس ان غیر زبانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور یاد رکھیں جو رسولوں نے غیر زبانیں بولی وہ پلورل فارم تھی, یعنی کہ جمع تھی, طرح طرح کی زبانیں تھی. وہ زبان نہیں تھی, وہ زبانیں تھی. ابھی ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ, ابھی ہل جل نہیں کرنا, جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہاں پر بیٹھا رہے. تو اب ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ رسولوں نے کون سی زبانیں بولی اور کون سی زبانیں اتری تھی, اور ان زبانوں کا پرپس, ان زبانوں کا مقصد کیا تھا. جو بولوں گا کلام مقدس میں سے بولوں گا, اور آپ نے میچ کرنا ہے کہ جو آج کلیسیا میں زبان بولی جاتی ہے وہ کلام مقدس سے کتنی میچ کرتی ہے یا کتنی نہیں. کوئی بھی بات آپ کو جاننی ہے, سمپل طریقے کا یہ ہے, آپ اسے بائبل مقدس سے جانیں. اور یاد رکھیں یہ ٹاپک میں ایسے ہی نہیں کرنے لگا. 6-7 مہینے میں نے اس ٹاپک کو جب میں نے سنا کہ یہ باتیں اس طرح ہیں تو میں نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے, اچھے سے پڑھا ہے اور اچھے سے جانا ہے, اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. 7 مہینے اس ٹاپک پر اسٹڈی کر کر پھر میں بولنے لگا ہوں. ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کرنے لگا. تو مجھے اس جگہ کا ڈر ہے کیونکہ اس جگہ پر پہلی بار یسوع نے پرچار کیا ہے, کیونکہ سب سے پہلے انجیل کو سنانے والا کون سا شخص تھا؟ خود یسوع تھا. اور مجھے اس جگہ کا ڈر اور خوف ہے کیونکہ یہ جگہ سب سے پہلے یسوع کی ہے جس جگہ پر ابھی اس وقت میں کھڑا ہوں. تو مجھے لازمی ہے کہ میں سب کچھ اسٹڈی کر کر آپ کے سامنے مدعا رکھوں, بیان کروں جو باتیں کلام مقدس میں سے میں نے سیکھی ہیں. تو ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے عیسیٰ پینتیکوست کا مطلب مجھے بتائے گا کیا ہے. 50واں دن ابراہیمی نے اس عید کو کہتے ہیں شبوت, یعنی کہ پرانے نامے میں ہفتوں کی عید سے کہا جاتا ہے, آزادی کا سال بھی کہا جاتا ہے. اور یہودی اس کو اس لیے اس عید کو مناتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جس دن عید پینتیکوست کا دن تھا اس دن
पेंतीकोस्त के दिन ही बुजुर्ग दाऊद पैदा हुआ, बुजुर्ग दाऊद मरे। मगर मसीहत के दरमियान इसे पेंतीकोस्त का मतलब यह है कि 120 की जमात के ऊपर जुबान उतरी या रूह का नज़ुल हुआ। अब जब रूह का नज़ुल हुआ है शागिर्दों के ऊपर, तो क्या इसे पेंतीकोस्त के दिन बार बार ही ऐसा होता है या एक ही बार हुआ है? एक ही बार। भाई के लिए तालियां, भाई के लिए तालियां। ये एक ही बार ऐसा हुआ है। और अगर कोई आपको सिखाता है कि हरी के पेंतीकोस्त के दिन लाइन पे खड़े हो आपको रूह मिलेगा, तो ये साफ साफ झूठ है। एक ही बार ऐसा वाकया हुआ है, जैसे मूसा और बनी इस्राएल को जब समुद्र में से गुजरते हैं, उस दरिया में से गुजरते हैं, तो वो क्या बार बार बपतिस्मा हुआ? वो एक ही बार का बपतिस्मा था। जैसे नूह ने एक ही बार कश्ती बनाई, अभी वो कश्ती दोबारा बन सकती, इतनी बड़ी कश्ती या उसमें जो जानवर संभाल सकते हैं? नहीं। तो कुछ घटना कलाम मुकद्दस में एक ही बार बयान हुई है। अब आप हर रोज जिस दिन आप कलाम को कबूल कर लेते हैं, आपको रूह गाइड करना शुरू कर देता है। रूह गाइड आपको करना शुरू कर देता है। तो हर रोज जिस दिन आप कलाम को कबूल कर लेते हैं, रूह आपको गाइड करना शुरू कर देता है। जरूर नहीं कि पेंतीकोस्त के दिन ही आप बड़ी बड़ी तादाद पे लाइन लगा के खड़े हो तो आज रूह उतरेगा, रूह उतरेगा। खुदा कहता है बेटा कि जब तूने कबूल किया था जिस दिन मुझे, उसी दिन तो रूह उतारा था। अब कौन सा रूह मांग रहा है? तो हम अपनी मरकजी आयत देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक खुदा है जिसने आगे बाग एदन के अंदर एक आदम को बनाया है। आगे बाग एदन के अंदर जब आदम को बनाया गया तो उसको किस पर्पस के लिए बनाया गया? ताकि खुदा बाप उससे बातचीत करे, वो बात की हिफाजत करे। खुदा उससे मोहब्बत रखता था। एक दिन आदम ने गुनाह कर लिया और बाग एदन से निकाल दिए गए। अब जो खुदा करता है उस बाग एदन से निकले हुए इंसान को दोबारा लाने के लिए करता है। खुदा का नुक्ता नजर जो भी खुदा करता है, एक ही बात, खुदा बाप अपने बेटे को भेजता है कुर्बानी के लिए। किस पर्पस के लिए? किस मकसद के लिए यीशु की कुर्बानी हुई? ताकि इंसान जिंदगी पाए। दोबारा जिस बाग एदन की जमीन से वो निकाला गया, वापस उस आदम की जमीन में जाए। और खुदा ने जो कुछ किया इस आदम को वापस लाने के लिए किया। फिर पैदाइश से मलाकी तक 4400 साल गुजर जाने के बाद एक शख्स पैदा होता है कुमारी मरियम से। उसका नाम क्या है? यीशु। और यीशु एक वादा करता है। कौन सा वादा करता है? अपने शागिर्दों से और हम सब से भी। बिल्कुल इस बार टॉपिक के मुताबिक आज बताएं। वेरी गुड। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। ये यीशु मददगार का वादा करता है कि मैं जाऊंगा और एक मददगार भेजूंगा। ये रेफरेंस आपको मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत। यीशु कहता है मैं बाप से दरखास्त करूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार भेजेगा। और याद रखें यीशु जब भी बोलता था पुराने अहदनामे का लिंक लेते थे या पुराने अहदनामे के बिहाफ पर वो बोलते थे। क्यों? क्योंकि जितनी बातें पुराने अहदनामा में लिखी गई, यीशु कहता है किसकी बाबत लिखी गई? मेरी बाबत लिखी गई। आज की मरकजी आयत देखते हैं यूएन नबी की किताब उसका 2रा बाब उसकी 28वीं आयत। आपको इस माइक से आवाज मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है? आवाज बिल्कुल समझ आ रही है कि माइक से बिना माइक के बात करो? ठीक आ रही है? हवाला पढ़ेंगे, मरकजी आयत पढ़े 28। और इसके बाद मैंने हर पर्दे बशर पर अपनी रूह और इसके बाद मैं हर पर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान गोया देखेंगे। ख्वाब का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बाइस खबर करो। खुदा मुझे शुक्र हो। तो यूएन नबी की मार्फत प्रोफेसी थी कि जब रूह हक तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या करोगे जी? नबूवत के ऊपर मैं ज्यादा जोर दूंगा क्योंकि यीशु ने भी कहा था मैं जाता
बात है कि यही लिखा गया है, जब रूह हक तुम्हें मिलेगा तो तुम नबूवत करोगे, और नबूवत का मतलब है प्रोफिट करना, कलाम करना। यहाँ तक सब ठीक है। जब रूह उतरेगा तो क्या होगा जी? कलाम होगा, नबूवत होगी। अब यीशु मुकद्दस मत्ती की अंजील 28वां बाब उसकी 19वीं है, लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 47 है, यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 24वीं आयत पर, जहां पर एक ही बात यीशु मसीह ने कही है शागिर्दों को कि सब कौमों में जाओ, उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो तालीम दो। अब यीशु कहता है कि सब कौमों के पास जाना है। दो बातें यहाँ पर हम सीखेंगे। शागिर्दों को कहता है कि तुम्हें सब कौमों के पास जाना है और मेरी तालीम देनी है। अब आजा बच्चा, आजा, अब आपका काम शुरू हो गया। ये है पतरस, यानी कि कह सकते हैं शागिर्द। अब यीशु कहता है कि तुम्हें कौमों के पास जाना, मेरी तालीम देनी है। अब ये कहता है बच्ची आप भी आ जाए, इस जगह पर खड़े हो, फटाफट आ जाए, आप आ जाए, इस जगह पर खड़ी हो, ये आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी। ये है पतरस शागिर्द। इसको यीशु हुक्म कहता है कि तुम्हें जाना है सब कौमों के पास और तुम्हें देनी है कलीसिया को क्या, लोगों को क्या, तालीम। अब ये तो है सब कौमों के पास जब जाना, ये तो है पश्तो बोलने वाला, ये तो है जापानीज, ये तो है चाइनीज बोलने वाला। तो ये सब शख्स जब जाएगा इसको तालीम कैसे देगा? बैठ जाए। ये शागिर्दों का यीशु कहता है सब कौमों के पास जाना है और तालीम देनी है, मेरा कलाम सुनाना है, क्योंकि जब रूह उतरेगा तुम लोग नबूवत करोगे। तो इसको नबूवत जब करनी है, सब कौमों में जाके कलाम सुनाना है, तो ये पतरस या शागिर्द कह ले, ये गैर कौमों को उनकी जुबान में कैसे कलाम सुना सकते हैं? अब जब सब कौमों के पास शागिर्दों में जाना है तो शागिर्दों को लाजमी है कि क्या आना, उनकी जुबान आना। सब कौमों में जाने के लिए शागिर्दों को उनकी जुबान आना लाजमी था। अगर जुबान नहीं आएगी तो कैसे उनसे बातचीत, कैसे यीशु की गवाही दे सकते हैं? और यही अगर रेफरेंस जब इस्तबास देखे मुकद्दस मरकज की इंजील, अभी निकाले वाला मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 15वीं से जरा 18वीं आयत पढ़े। यहाँ पर यीशु मसीह ने कौमों के पास जाने के लिए कुछ हदायत भी दी है। ये हदायत नोट करना कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। यहाँ भी एक ही बात है, यीशु कहता है कि शागिर्दों को तुम आप सब ने जाना है दुनिया में, और क्या करनी है? इंजील की मुनादी। आगे बढ़े। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ये 18वीं आयत से शुरू है, जरा क्या यीशु कहता है? और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे। जरा मोर्चे सुनिएगा, जरा क्या है? वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। बदरुए निकालेंगे। अब सवाल ये है, बदरुए जमीन पर निकालेंगे या आसमान पर जाकर निकालेंगे? जमीन पर। आगे बढ़े। नई नई जुबानें बोलेंगे। नई नई जुबानें बोलेंगे। आसमान पर जाकर बोलेंगे या जमीन पर? आप मेरे साथ है कि नहीं? यीशु मसीह ने ऊपर इस्तबाल कहता है कि खलकत के सामने जाना है, दुनिया के सामने जाना है और मोर्चे करने हैं, बदरुओं को निकालना है। कहां पर? दुनिया में। और नई नई जुबानें आसमान की बोलेंगे या जमीन की? जमीन की, क्योंकि दुनिया में जाना है। यीशु कहता है नई नई जुबानें बोलोगे। आगे पढ़ो। सांपों को डालोगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियोगे तो उन्हें, अगर कुछ हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ डर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। ये सब बातें जो कही गई, बीमारों पे हाथ रखेंगे, बदरुओं को निकालेंगे, ये सब यीशु ने कहा। तुम जब कौमों में जाओगे, जब दुनिया में जाओगे, तुम जब मुझ पर ईमान ले आओ तो तुम ये सब काम करोगे और नई नई जुबानों के बोलोगे। कौन सी?
دنیا کی نئی نئی زبانیں بولوگے، کیونکہ رسولوں نے آسمان پر نہیں جانا تھا، رسولوں نے زمین پر منادی کرنی تھی. اور یہاں پر جو نئی نئی زبانوں کی جگہ الفاظ ہے، گریک شبد ہے گلوسا. اس کی اگر ڈیفینیشن آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو گھر پہ جا کر آپ نوٹ کر لیں اس بات کو، گوگل میں ریسرچ کر کے دیکھ لینا. اس طرح طرح کی زبانوں کی جگہ جو گریک الفاظ استعمال ہوا ہے، گلوسا استعمال ہوا ہے، اسٹرونگ نمبر 1100. اور جب گوگل میں اس کو لکھو گے تو اس کی ڈیفینیشن ہے دی ٹنگ آف دی نیشن. یسوع نے کہا کہ تمہیں سب قوموں میں جانا ہے، تمہیں نئی نئی زبانیں دی جائیں گی، تمہیں معجزے دیے جائیں گے، مگر کہاں کے لیے؟ دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، دنیا میں استعمال کرنے کے لیے. اب پرانے نامہ کے جب جتنے نبی تھے انہوں نے کہاں جا کر منادی کی؟ اسرائیل کے اندر. وہ اسرائیل سے باہر نہیں گئے، مگر ایک نبی تھا جسے غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا تھا. ایک ہی نبی ہے پرانے نامے کا ایک ہی نبی. وہ کون ہے؟ یونا. بھائی کے لیے پھر تالیاں. یونا ایک ایسا شخص تھا جسے غیر قوم کے پاس بھیجا گیا تھا. اور یونا کے نام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کبوتر. اور کبوتر نئے نامے میں کس کی نشاندہی کی گئی ہے؟ پاک روح کی. یعنی کہ جب روح حق اترے گا، پرانے نامے میں بتایا گیا ہے جب روح حق اترے گا جو یونا نشاندہی کرتا ہے، میں کبوتر کو یعنی کہ جس کے اندر روح حق اترے گا وہ کہاں جائیں گے؟ غیر قوموں کی طرف جائیں گے. اور جب یونا غیر قوموں کی طرف گیا، نینوا شہر میں گیا، تو کون سی زبان میں منادی کی ہوگی؟ جو نینوا کے شہر سمجھتے تھے. جب یونا جاتا ہے نینوا کے لوگوں کے پاس تو انہیں ہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ نینوا شہر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. 150 سال تک نینوا شہر آباد رہا یونا کی منادی کے بعد. اور نینوا شہر کو بسانے والا نمرود بادشاہ تھا. اور یونا بھی گلیلی تھا اور یسوع بھی گلیلی تھا. ہم نے یہاں پر ابھی تک کیا بھیجا یعنی کہ سیکھا ہے کہ یونا نبی کی ماں پر پروفیس ہوئی ہے جب روح حق تم پر اترے گا تو تم کیا کرو گے؟ نبوت کرو گے، کلام کرو گے. یسوع کہتا ہے کہ جب روح حق تمہیں دیا جائے گا وہ تمہیں کلام کی باتیں سکھائے گا، تمہیں کیا بولنا ہے. اور یسوع کہتا ہے تمہیں سب قوموں کے پاس جانا ہے. اور مرکز میں لکھا ہے جب سب قوموں کے پاس جاؤ گے، جب مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو تم نئی نئی زبانیں بولو گے. نئی نئی زبانیں کون سی نئی نئی زبانیں ہیں؟ یہ دنیا کی نئی زبانیں ایمان کی کتاب میں بولی گئی ہیں. آگے چلتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. جو کلیسیا میں آج آپ زبان سنتے ہیں، ایک ہی زبان کو رپیٹ کیا جاتا ہے، ایک ہی الفاظ کو رپیٹ کیا جاتا ہے. ایسی کوئی زبان نہیں. میں بتاؤں گا کہ یہ کڑوا بیج کہاں سے بویا گیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے. کہاں پہلی بار یہ ربا اور شبا بولا گیا اور کس وقت بولا گیا اور کس تاریخ کو بولا گیا اور کس سن میں بولا گیا. اور اس کو بولنے والا پہلے شخص کا جو پادری تھا اس کا نام کیا تھا؟ اور جس لڑکی نے یہ زبان بولے اس کا نام تو نہیں پتا مگر ایک جاپنیز عورت تھی. یہ سب باتیں سیکھیں گے. مگر کلام مقدس کی 11 زبانیں جب اترتی ہیں، طرح طرح کی زبانیں اترتی ہیں، یہ دنیا کی زبانیں ہیں. اور اب ایمان کی کتاب نکالو ذرا. یہ اتنی ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے اگر بیچ میں سے بتاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے شروع سے لے کر جا رہا ہوں. ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 2 سے 4 آیت پڑھیں. پہلا باب کیا پڑھیں. میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں سے پیار میں تسلیم کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی آیت تک پڑھیں. اس دن تک جس سے وہ ان رسولوں کو جنہیں اس سے سنا تھا روح قدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس سے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا.
चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना यहाँ पर जब एक अल्फाज भाई ने पढ़ा है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, अब सवाल है यीशु ने क्यों कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना? अभी तक रूह का नज़ूल नहीं हुआ, इसलिए कहता है यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना। और यही वाक्या और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती 10 का 5 का 7 पढ़े। जब यीशु 17 को भेजते हैं, जब यीशु 12 को भेजते हैं, तो यीशु कहते हैं कि गैर कौमों की तरफ मत जाना। क्यों ना जाना? क्योंकि ना ही अभी रूह उतरा था और ना ही अभी रूह की नेमतें उतरी थी। अब यीशु कहता है कि यरूशलेम के बाहर ना जाना। अब ईमान की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े जरा, यहाँ पर क्या लिखा है? लेकिन जब दुष्ट तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की तहा तक तो मेरे गवाह होगे। यहाँ पर यीशु कहता है तुम सामरिया में भी जाओगे, यहूदिया में जाओगे, दुनिया की इंतहा तक जाओगे। यह क्यों कहा कि अब सबको पूरी दुनिया की इंतहा तक जाओगे? पहले यीशु कहता है ठहरे रहना, पहले यीशु कहता है गैर कौमों की तरफ मत जाना, अब यीशु कहता है पूरी दुनिया में जाना है। क्यों? क्योंकि यही आयत बताती है कि जब रूह हक तुम्हें मिलेगा, जब रूह हक तुम्हें मिलेगा तो तुम दुनिया की इंतहा तक जाओगे और सब कौमों के लिए मेरे गवाह ठहरोगे। अब हम आगे हैं ईद पेंतिकोस्त के वाकया पर। अब आपको ये भेष बताने का मतलब ये था, भेष बनाने का, क्योंकि रद्दा तब रखा जाता है जब भेष बनी हो। भेष बनाने का मेरा मकसद ये था। यहाँ तक अभी हमने सीखा है कि जब रूह हक उतरेगा, नई नई जुबानें बोलोगे, नई नई जुबानें दुनिया की है, जब रूह हक उतरेगा तो कलाम होगा। अभी तक नहीं दिख रहा कि दुआ होगी, वो भी ऐसी जुबान में जो ना बोलने वाले को समझ आ रही है, ना सामने वाले को समझ आ रही है, ना ऊपर वाले को समझ आ रही है। मगर ईमान की किताब में अब देखिएगा, जरा मैच कीजिएगा, खुद मैच कीजिएगा। ईमान की किताब में क्या हुआ? ईमान की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 4 है, पढ़े जरा। और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। यानी कि 120 की जमात ईमान रख के बैठे हुए थे। किसका? रूह का। यानी कि यीशु ने कहा था कि ठहरे रहना। वो 10 दिन तक ठहरे रहे थे कि अभी रूह उतरेगा, अभी रूह जिस दिन उतरा और उस पर ईमान, पहले ईमान रख के बैठे हैं, ईमान रखा है कि अब रूह हम पे उतरेगा। और जब ईमान रख के बैठे हुए तो उन पर जुबानें उतरी हैं। अब ये आ गया वो घटना, वो वाकया। अब वो हम आगे हैं जिस जगह पर ये जुबानें उतरी हैं। अब जब उन्होंने जुबानें बोली हैं, अब सुनिएगा इस बात के लोगों ने क्या समझ आया और लोगों ने बोला क्या है। जब 120 की जमात ने ये जुबानें बोली हैं, जरा पढ़िएगा 7 आयत पढ़े, 2 का 7, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है। 2 का 7, हारिस भाई जरा ऊंचा पढ़े, 2 का 7। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? सब हैरान हुए, क्या ये बोलने वाले 120 गलीली नहीं? वो गलीलियों की लोकल भाषा जहाँ ग्रीक बोलते हैं, जाके इब्रानी, ये 2 जुबानें वो बोलते थे गलीली। 120 की जमात को कहते हैं ये लोग, क्या ये सब गलीली नहीं? आज भी याद पड़े। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है? कोई बता सकता है? जब 120 ने बोला और 8वीं आयत में लिखा है, लोग कहते हैं कि ये फिर क्यों हमारी ही बोली बोल रहे हैं, हम अपनी जुबान सुन रहे हैं। क्या आज जो दुआ करता है सामने वाले को अपनी बोली, अपनी जुबान समझ आती है? क्या आपने कभी किसी गैर जुबान वाले को बोलते हुए नहीं देखा? तो फिर बोलते क्यों नहीं? डर किस बात का है आपको?
किस बात का डर है आपको? यहाँ पर साफ लिखा है, जब वो बोल रहे थे लोगों ने कहा कि हमको अपनी अपनी जुबान अपनी अपनी बोलियां समझ आ रही हैं। वो 11वीं आयत में तो फिर कोई सवाल बाकी नहीं रहता। जरा पढ़े 11वीं आयत। मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे हैं? जब जुबानें सुन रहे हैं तो लोगों ने क्या कहा? अपनी अपनी जुबानें में खुदावन के बड़े बड़े कामों का बयान और जिक्र सुन रहे हैं। क्या आज ऐसा होता है? मैच करते जाएं। मेरा यहाँ पर कलाम करने का मकसद है मैच करना। मैच करें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा। जब उसकी तरफ से जुबान नहीं बोलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर 11वीं आयत में बताती है कि जब 120 बोल रहे थे, लोग कहते हैं हम अपनी अपनी जुबानों में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे हैं। बड़े बड़े ये काम कौन से थे? वो नबूवत कर रहे थे, यीशु मसीह की पेशन गोई कर रहे थे, वो कलाम कर रहे थे। क्योंकि यूएल नबी की मां का हुक्म क्या था? जब रूह हक उतरेगा तो क्या करोगे? दुआ करोगे क्या नबूवत? तो इन्होंने क्या किया है? दुआ की है कि नबूवत? नबूवत की है। यही वाकया 3 जगह पर रिकॉर्ड हुआ है। सेम ऐसे ही। जरा पढ़े ईमान की किताब, उसका 10 बाब उसकी 46 है। 11 कौमों में जब रूह हक का नज़ूल हुआ तो पतरस ने क्या कहा? सुनिएगा जरा। और पतरस ने जवाब दिया। जरा ऊंची पढ़ा दे। जो कोई भी हवाला पढ़े ऊंची पढ़े, ऊंची पढ़ो। यहाँ पर जब गैर जुबानों में रूह उतरा है तो पतरस और उसके साथ के साथी पता क्या कहते हैं कि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते खुदा की तमजीद करते सुना है। आज जो बोला जाता है, क्या खुदा की तमजीद करते हुए आपको समझ आती है? और ये छोड़े, उस शख्स को पूछा जाए बेटा क्या बोल रहा है, बोलेगा पता नहीं। और आपको पता है ये बात बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आपके जिस्म के साथ कोई हरकत हो रही है और आपको पता ही नहीं। आपको कोई चुट्टी काट रहा है, आपको कोई पता ही नहीं। जो ये शख्स स्टेटमेंट देता है कलीसिया के अंदर, अब कनेक्शन आ रहा था सुनिए। कलीसिया के अंदर आज भी एक ड्रामा किया जाता है। जब वो पादरी हाथ रखता है और लोग गिर कर नोट फोड़ होते हैं, तड़पते हैं। और उनसे जब उठा कर पूछा जाता है बेटा तेरे साथ क्या हुआ है, कहते हैं पता नहीं। क्या ये ठीक है? आदमी तड़प रहा है वो पता नहीं। आपके साथ जो कुछ होता है आपको पता होना लाजिम है, लाजिम है। फिर ये नहीं कहना कि हम जो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम बोल क्या रहे हैं। बताऊंगा कि बोल क्या रहे हैं, कई मुद्दत से क्या बोल रहे हैं, बताएंगे। यहाँ पर तरह तरह की जुबानें बोली गई है। पतरस कहता है कि खुदा के बड़े बड़े कामों की तमजीद। वहां पर जब 120 ने बोला तो लोग कहते हैं बड़े बड़े कामों का जिक्र सुना। और यहाँ पर जब पतरस के बात बोली गई तो पतरस कहता खुदा की तमजीद कर रहे हैं। वो पतरस ने जवाब दिया। क्या जब बात बोली जाती है कोई शख्स जवाब देता है? नहीं, जवाब कैसे देगा? समझ आएगी तो जवाब देगा। अब एक और वाक्य सुने, सेम कंडीशन यही है। पौलुस के वक्त क्या हुआ? ईमान की किताब 19वां बाब उसकी 6वीं आयत, जो निकालने जरा पाल से पढ़े। दाखिला में लिखा है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोले और नबूवत करने लगे। जब पौलुस ने हाथ रखा, यहाँ पर साफ लिखा है वो तरह तरह की जुबानें बोलने, साथ में और है। और क्या करने लगे? और क्या करने लगे? और यूएल नबी की मां को प्रोफेसी क्या थी? नबूवत करेंगे। जब रूह हक उतरेगा उसकी नेमतें जाहिर होंगी तरह तरह की, तो वो नबूवत करेंगे जुबानों में। नहीं लिखा गया वो दुआ करेंगे। अभी तक आपने कहीं पढ़ा हो कि इन जुबानों में दुआ करने का हुक्म है? कहीं पर ऐसा कोई वाकया आया हो? तो आज का हमारा अनुमान भी यही है कि कौन सी जुबानें उतरी और उन जुबानों का पर्पस क्या था। जुबानें उतरी थी नई नई तरह तरह की ग्रीक शब्द। यहाँ पर जहाँ पर 3 हवाले पड़ेंगे, यहाँ पर भी
ग्रीक निकाले, ये नोट करें। ग्लोसा लिखा है स्टोन नंबर 1100, गूगल में टाइप करें तो लिखा है द टंग ऑफ दी नेशन। दुनिया की जुबानें 120 ने बोली। क्यों बोलने का पर्पस क्या था? एक और सुने जरा। जब पतरस बोल रहा था, क्या पतरस को पता था कि मैं कौन सी प्रोफेसी कोट कर रहा हूं? ये बात है, ये बात है। आज जो बोला जाता है उनको नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, मगर पतरस ने और 120 ने जब बोला उनको पता था कि उन्होंने क्या बोला है, वो कौन सी प्रोफेसी कोट की है। आए मेरे साथ ये भी हवाला देख लें, ईमान की किताब उसका दूसरा भाग उसकी 14वीं से 18वीं आयत पढ़े। पतरस को पता था कि हमने बोला क्या है, पतरस को पता था ये कौन सी बातें हैं। फिर आज बोलने वाले को क्यों नहीं समझ आती कि ये कौन सी बातें हैं? आज बोलने वाला क्यों कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा? ये वेद की बातें हैं, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, जो कहते हैं कि ये वेद की बातें हैं। जरा पढ़े 2 का 8 से 14 तक सुनिएगा जरा। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों। पतरस उन 11 में से खड़ा होकर कहता है कि ऐ यहूदियों है यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है। कुछ लोग समझ रहे थे ये नशे में है। अब ये कौन थे जो कहते थे नशे में है? जो यीशु मसीह को नबूवत को कबूल नहीं थे करना चाहते। 120 ने जो बोला था वो मानना नहीं थे चाहते। जैसे यीशु भी जब वे जमीन पर थे कलाम करते थे, फकीर फरीसी उसके कलाम को कबूल करते थे, कहते थे कि ये पागल है, या हाँ ये जादूगर है, ये इसमें बदरुए हैं, बहुत कुछ कहा, क्या वो कबूल करते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ, जब वो नबूवत कर रहे थे, कलाम कर रहे थे, तो कई कहते हैं ये तो बातें ऐसा ही है, ये तो नशे में कुछ भी बोलते हैं। आगे बढ़े। बल्कि ये वो बातें हैं, मैं इसमें जोर देकर पढ़े, ये वो बातें हैं। इसका मतलब है कि जब मैं पतरस ने बोला, पतरस कहता है कि ये वो बातें हैं। ये वो कौन सी बातें हैं? पढ़े। जो योएल नबी की मार्फत प्रोफेसी थी। इसका मतलब है कि जब पतरस बोल रहा था, 120 बोल रही थी, उनको पता था कि ये योएल नबी की मार्फत प्रोफेसी कोट कर रहे हैं और वहां पर जो लिखा है उस बातों को बयान कर रहे हैं। पतरस की बात सुनिएगा जरा। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। और योएल नबी की मार्फत क्या कहा गया था? सुनिएगा। कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। आखिरी दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा जरा सुनिएगा। कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटी, तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। अब यहाँ पर एक रुकिएगा जरा। यहाँ पर भी पतरस वही बात कहता है जो योएल नबी की मार्फत लिखी गई। पतरस कहता है कि योएल ने कहा है जब रूह उतरेगा तो क्या होगा जी? पतरस ने भी यही कहा। क्या कहा? यहाँ पर लिखा है कि वो दुआ करेंगे इन जुबानों में नहीं, 2 बार जिक्र है नबूवत करने का। पतरस ने कहा है, बड़ा पढ़े, आगे भी पढ़े। और तुम्हारे जुबान रोया और तुम्हारे मुझे ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। वो नबूवत करेंगी। यहाँ पर 2 बार शब्द इस्तेमाल हुआ है, नबूवत करेंगी, नबूवत करेंगी। और खुदा के कलाम के मौफिक पता क्या है? खुदा कहता है कि 2 गवाहों का होना खुदा का कलाम कहता है जरूरी है। अगर इन जुबानों में दुआ ही करनी थी तो यहाँ पर एक जगह तो पतरस कहता कि जब रूह उतरेगा दुआ करोगे। यहाँ पर 2 जगह पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब रूह उतरेगा तो नबूवत की जाएगी, नबूवत की जाएगी। अब इसका पतरस ने सारी बात बता दी। जो बोलने वाला शख्स है ये खुद कह रहा है कि ये वो बातें हैं। आज जो कलीसिया के अंदर जो बोलता है क्या वो कहता है कि ये वो वाली बातें हैं, ये खरूज की किताब की बातें हैं, ये ईसाया की किताब की बातें हैं? कहता है कोई? कहीं सुना हो कभी? शायद मैंने ना सुना हो, आपने कहीं ना सुना हो। भाई बैठ जाए आप, सब एक जहां पर बैठ जाए। तो अभी तक क्या सीखा है हमने? नबूवत और तरह तरह की जुबानें। ये कौन सी तरह तरह की जुबानें हैं?
जमीनी, रवा रवा शवा शवा, ऐसा कुछ नहीं। तभी सवाल ये है, आप कई मुद्दत से किस रूह से बोल रहे थे? बताऊंगा। फालूस भाई ने इस रूह का जिक्र किया है कि आप कई मुद्दत से आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि विशाल भाई, हमारा पास्टर इंग्लैंड से पड़ा हुआ है, हमारा पास्टर समुद्री खोल कर बैठा हुआ है, 100 खादम उसके नीचे काम करते हैं, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर कहते हैं कि हमारा बोलता है, फिर आपकी क्यों सुनी जाए? आ रहा होगा सवाल, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। सबके मन में एक सवाल है कि हमारा पास्टर और हम आप जैसे मछेरे की क्यों सुने? क्योंकि हम अपने आप को मछेरों की लिस्ट में रखते हैं। अगर हम प्रोफेसर होते तो बाइबल को, खुदा को पढ़ाना शुरू कर देते। अच्छा हुआ हम प्रोफेसर नहीं, मछेरे हैं, इसलिए खुदा से सीखते हैं और बयान करते हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर बन जाते हैं वो खुदा को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो एक सवाल था अब सबके ज़हनों में, अब उसका जवाब देने लगा। जरा सुनिएगा कि सबके ज़हन में था कि विशाल, आप तो बच्चे हैं, हमें क्या सिखाएंगे? हाँ, हमारा वाला तो प्रोफेसर है। हारून क्या था? आओ जरा, हारून क्या था? काहिन, नबी। आज के जमाने में होता तो उसके नाम के आगे क्या था? प्रोफेसर। प्रोफेसर हारून क्या कर बैठा? बछड़ा बना बैठा। क्या वो बछड़ा खुदा था? वो तो अच्छे वक्त पर मूसा पहाड़ से उतरा, नहीं तो बनी इस्राएल को पता क्या कहती? मुल्क मिस्र में से हमें यही खुदा निकाल लाया है। उस खुदा की प्रस्तिश करना शुरू कर देते जो हारून ने बनाया था। क्या हारून ठीक था कि गलत था? वो था कौन? उस्ताद, प्रोफेसर। तो फिर वो गलत हो सकता है, तो आपके जमाना में प्रोफेसर क्यों नहीं गलत हो सकते? बुजुर्ग दाऊद कौन था? नबी और बादशाह। और बुजुर्ग दाऊद के हक में खुदा ने क्या कहा था? ये मेरे दिल के करीब है। क्या कर रहा था? खुदा दिल के करीब और खुदा कर रहा था। इसका ये एक बेटा था जिसने हैकल बनाई, उसका नाम क्या था? सुलेमान। वो क्या कर रहा था? इससे पहले एक और बादशाह था, उसका नाम क्या था? साउल बादशाह। क्या कर रहा था? बुत परस्ती के चक्कर में फंस गया। तो आप कहेंगे अगर मेरा वाला प्रोफेसर है तो मैं कहूंगा ये वाले भी नबी थे, ये वाले भी नबी थे। तो जब नबी नहीं, गुनाह यहाँ पर नजर आता है कि वो फंस गए, तो फिर आपके वाले क्यों नहीं फंस सकते? आपके वाले क्यों नहीं फंस सकते? वो सोचिएगा मैंने बोला क्या है। बिस्तर पर सिर रखने से पहले ये बातें सोचिएगा कि मैंने बोल क्या दिया है। बताना ये चाहता हूं, जब हम खुदा ने हमें बुलाया है तो हमारा तारुफ क्रूस पे जो यीशु लटका था उससे साथ नहीं करवाया गया। हमारा तारुफ जिसकी फोटो आप घरों में देखते हैं, जिस यीशु की, उस यीशु से नहीं करवाया गया। हमें यह समझाया गया कि बेटा खुदा क्या था और कहाँ है ये तेरे को बताएगा। ये हमारा तारुफ डायरेक्ट इस बाइबल से करवाया गया है और इस बाइबल के आगे हम किसी प्रोफेसर की, किसी पास्टर की, किसी रेवरेंड, किसी डॉक्टर की नहीं सुनते। हमें पहला दर्जा हासिल है इस मुकद्दस बाइबल, मुकद्दस कलाम का सोचने का। क्योंकि पौलुस भाई कहते हैं अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो मसीह का बनना नहीं। तिमोथियस की बात मुझे याद आ रही है। तिमोथियस कहता है कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो कानों की खुजली के मौफिक अपने लिए उस्ताद ढूंढ लेंगे। ये कानों की खुजली पता क्या है? जैसा कि आपको पसंद है कि यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी, मैं आपको ये लगेगा कि विशाल भाई ये बोलेगा, इसको कहते हैं कानों की खुजली। जैसा आपके कान को पसंद है, आप कहते हैं कि सामने वाला वैसा बोले, मगर हम वैसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। हम आपकी कानों की खुजली नहीं मिटा सकते हैं। हमें जो
खुदा का कलाम कहता है हम वही बातें बयान करेंगे। तो अब तक जितने हवाले पढ़ेंगे, जितने हवाले देखेंगे, सब में एक ही बात लिखी, जब बोलियां बोली गई, जुबानें बोली गई, दुनिया की जुबानें बोली गई, और उन जुबानों में क्या हुआ? कलाम हुई, नबूवत हुआ। अब आते हैं उन हवालों पर जिन हवालों को लेकर आपके सिर घूमे हुए हैं, सिर समझते हैं, आपका माथा चुकराया हुआ है, आपका माथा घुमा हुआ है। जब कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर लिखा है कि ये नबूवत है, इसको कोई नहीं समझता इन जुबानों की। अब जरा उन रेफरेंस पे आते हैं। अब जरा जाग जाए, ये मेन दो हवाले पढ़ूंगा, अब जरा जाग जाए और अलर्ट होकर जाग जाए। जरा पहला हवाला पढ़े, पहला ग्रंथियों 13वां बाब, जो कहते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं। आपने सुना होगा कि कुछ ये जुबान बोलते हैं रवा शबा और कहते हैं कि ये कौन सी जुबानें हैं? फरिश्तों की जुबानें। अब देखते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं या कौन सी जुबानें हैं। जरा उस हवाले को आप देखते हैं। पहला ग्रंथियों का 13वां बाब की पहली है। जी भाई, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो रखता पीतल और जंजनाती जान हूं। यहाँ पर लिखा है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं तो मैं ठंडनाता पीतल और झंझनाती। अब यही आयत को लेकर लोग आपको कहते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं। यही आयत है ना। अब इस आयत को देखते हैं। सबसे पहले कलाम मुकद्दस का पढ़ने का पैटर्न क्या है, अलग से आपको जरा सुनिएगा। आपको मैंने कोई मजमून दिया है पाकिस्तान के बारे में लिखने का कि क्या आप अपने घर के बारे में लिखेंगे? उस उन्वान पर क्या लिखेंगे पाकिस्तान के बारे में? तो इसे कहते हैं इस्तबाद, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे जो यहाँ पर जो आयत बयान करती है ये मोहब्बत की आयत है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग भी होगी, मोहब्बत। अब ये आयत में क्या थी? पहले जो कहते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं। यहाँ पर लिखा है कि लोग जब ये जुबानें बोलते हैं और फरिश्तों की जुबानें, सबसे पहले ये रेफरेंस आप चार जुबानों की जगह कोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत का इस्तेमाल है। इसमें बात हो रही है मोहब्बत की, फरिश्तों की जुबानें के लिए। सबसे पहले यहाँ पर इस आयत में क्या लिखा है कि फरिश्तों की जुबानों में दुआ करने का। यहाँ पर कोई मुझे निकाल के बताए इस आयत में लिखा हो। पढ़े आप ही अपनी बाइबल में पढ़े, फरिश्तों की जुबानों में दुआ करने का इस आयत में पढ़े आप। शायद मैंने बाइबल अलग रखी हो। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं लिखा है। और यहाँ पर जो पलूस भाई बता रहे हैं ये कुछ वर्ड्स है, सरकास्टिक वर्ड्स जिसे कहते हैं। शायद आपने पहली बार सुना हो, ये भाई जानते हैं क्योंकि ये एमएमबी के मेंबर है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ये बहुत दूर से आए हैं, ये इनको सब पता है। अब यहाँ पर जो पहले ग्रंथियों 13वें बाब में जो बयान पलूस भाई कर रहा है, ये सरकास्टिक वर्ड्स है। सरकास्टिक वर्ड्स वो होती है किसी को तोड़ मारना, किसी को व्यंग कसना। जैसे कि मैं आपको मिसालिया तौर पर बताता हूँ। ज़बूर की किताब उसका 137 उसकी 8 आयत पढ़े तो बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि अगर मैं आसमानों पे चढ़ जाऊं और पताल पे चढ़ा जाऊं, आप वहां भी हैं। क्या बुजुर्ग दाऊद पताल में गया? क्या आसमानों पे चढ़ा? इसको कहते हैं बड़ा चढ़ा कर बात करना। अब मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं फकीर और फरीसियों को, शाम के बच्चों, क्या फकीर फरीसी शाम के बच्चे थे? नहीं। यीशु कहते हैं शाम के बच्चों, क्या फकीर फरीसी शाम के बच्चे थे? इसे कहते हैं टोंट मारना किसी को। तो यहाँ पर टोंट ही मारा जा रहा है। कैसे? पौलुस कहते हैं अगर मैं तुम्हारे सामने फरिश्ते की तरह दिखाई दो, और फरिश्ते की जगह तो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ मैसेंजर, इवेंजलिस्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऐसा तुम्हें दिखाई दूं, एक उतरा हुआ फरिश्ते की तरह दिखाई दूं। मैंने घर में क्रूस पहनी है और बाइबल इधर लगाई है और मुझ में मोहब्बत नहीं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झाग। इसे कहते हैं सरकास्टिक। अगर आप कहते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं तो फिर आप बताइएगा कि पौलुस भाई कब ठनठनाता पीतल बना? पौलुस भाई का ठनठनाता पीतल बन गया। तो फिर इस आयत को समझे ना कि ये आयत हम क्या बता रही है। जैसे कैस्टिक वर्ड है, जैसे टोंट मार रहा है। अगर मैं तुम्हें फरिश्तों की तरह दिखाई दूं, अगर मैं तुम्हें इतना पास साफ दिखाई दूं, मैंने घर में क्रूस पहना है, मैं असेंबली करता हूं और मोहब्बत नहीं रखता, तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झाग। इस हवाले को पुख्ता करने
दिलाने के लिए इससे आगे जरा पढ़े क्या लिखा है, ये इत्तबा की मोहब्बत क्या है, पढ़े। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाक़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत पालूस भाई कहते हैं ना मैं मोहब्बत न रखूं, यानी कि पहाड़ों को हटा दो मोहब्बत न रखूं। पालूस भाई ने कब पहाड़ों को हटाया, क्या कभी हटाया पालूस भाई ने हटा दो पहाड़ों को, आगे पढ़े। पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। यहाँ पर आप पढ़ते जाए मोहब्बत न रखो, मोहब्बत न रखो, मोहब्बत न रखो। पालूस भाई कहता है अब अपना बदन जलाने के लिए दे दूं वो मोहब्बत न रखूं। ऐसे ही पीछे कहता है अगर मैं फरिश्तों की जुबानों और बोलियां बोलूं, यानी कि तुम्हें इतना अच्छा दिखाई दूं, वो मोहब्बत न रखूं। मोहब्बत के ऊपर जोर है, ये मोहब्बत का इस्तेमाल है। फिर क्यों कर कह देते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं। अब इस जुबाना के सोच के हिसाब से आता हूं। पैदाइश से मकाशा तक 1190 उपवाद हैं, 32,000 के करीब आयतें हैं। जब भी फरिश्ता आसमान से उतरा और इंसान से मुखातिब हुआ, कौन सी जुबान बोली? कोई जबान तो किसी इंसान की जबान जो इंसान को जुबान, फिर भाई के लिए ताली लगता है, भाई गौर से सुन रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं कि बच्चा बोल क्या रहा है, बच्चा सही बोल रहा है। यहाँ पर लिखा है, भाई ने कहा कि जो जुबानें बोली गई उन जुबानों की बात हो रही है। जो जुबानें लोग समझते थे, मुकद्दस मरियम पर जब जबराइल फरिश्ता नाजिल होता है तो उससे कहता है मुकद्दस मरियम तो हम होगी। अगर कहता फरिश्ता रबा रबा शबा शबा शबा, तो मरियम क्या कहती, क्या बोलता है बे, यानी कि क्या बोल रहा है। फरिश्ते ने मरियम से साफ गुफ्तगू की है, साफ फरिश्ता मुखातिब हुआ है मुकद्दस मरियम से। तो फिर क्यों आपने इस जुबान को कबूल कर लिया, क्यों आप गुमराही में चल रहे हो? मेरे बताने का मकसद किसी को मैं पर्सनल किसी को नहीं बोल रहा हूं, बस जो खुदा का कलाम है उसको बयान कर रहा हूं। अब देखते हैं कि वो रेफरेंस, ये आखिरी रेफरेंस है जिसको कहते हैं कि कोई नहीं समझ सकता। इस रेफरेंस को लेकर लोग आगे रखते हैं और लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। सबसे पहले तो पालूस भाई की राइटिंग के बारे में, अब पालूस भाई की राइटिंग को समझने के लिए एक जरा डाउनलोड करने का जरा दिल हो रहा है। आजा जरा बच्चा। पालूस भाई कहते हैं 11 जुबानें, 11 पहले रेफरेंस पढ़ ले, यहाँ पर खड़े पहला ग्रंथ चौक में बाबू का दूसरी है। क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। भेद की बातें कहता है, यही वो आयत है जिसको लेकर आप परेशानी में घूम रहे हैं कई मुद्दत से। जो बेगाना जुबानों से बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। तो पहले बेगाना अल्फाज को समझ लें। तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या था? खुलासा। दुनिया की जुबानें, नई नई जुबानों का मतलब क्या था? दुनिया की जुबानें।